So welcome students. In our previous lecture, we completed the nutritional requirement required for the cultivation of bacteria, and depending upon all those nutritional requirement, we discussed different type of bacteriological media and various type of purposes in which these bacteriological media are generally employed. ठीक है, इससे पहले हमने अलग अलग टाइप के बैक्टीरियोलॉजिकल मीडियाज स्टडी किए हैं और इन मीडियाज को किस टाइप के लिए किस फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है उसे देखा है। अब इस कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया में हमें जो लास्ट कंसेप्ट स्टडी करना है, ये लास्ट कंसेप्ट होता है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स, द रोल ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फिजिकल पैरामीटर इन कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया लेबोरेटरी कंडीशन पे अलॉन्ग विथ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। बैक्टीरिया के कल्टीवेशन के लिए अलग अलग फिजिकल पैरामीटर्स भी रिस्पॉन्सिबल है। These physical parameters show direct or indirect influence on the growth of bacterial cells। और यहाँ पर सबसे पहले जो फिजिकल पैरामीटर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फिजिकल पैरामीटर, इट इज अ टेम्परेचर। ओके, क्या है ये? टेम्परेचर। एंड डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ टेम्परेचर वी हैव अ स्पेसिफिक रेंज। यहाँ टेम्परेचर की एक रेंज होती है अलग अलग टाइप के बैक्टीरियल स्पीसीज के इंडिविजुअल नीड पर। इट इज फ्रॉम मिनिमम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, एक मिनिमम वैल्यू होगा, फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। मिनिमम वैल्यू, बिलो दिस पर्टिकुलर वैल्यू growth of bacteria cannot be observed in culture medium. Maximum, beyond this value also growth of bacteria cannot take place, and in दोनों के in between minimum and maximum we have a specific threshold level। क्या आएगा? एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड लेवल आएगा, द लेवल एट विच वी ऑब्जर्व maximum growth rate of bacterial cells in artificial medium with respect to the time। इसे हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है। This threshold level is referred as a level of optimum temperature। क्या कहेंगे हम इसे? It is referred as a optimum temperature level। Now depending on the need of temperature, entire population of bacteria is divided into three categories, where the first category psychrophiles। okay, पहला कैटेगरी क्या है? These are referred as psychrophilic bacteria। second category the mesophiles or mesophilic bacteria, and third category thermophiles or thermophilic bacteria। We have these three different bacterial categories depending upon their need of temperature। ठीक है, now psychrophiles, the bacteria which show their growth ranging from 0 degree Celsius to 20 degree Celsius are called as psychrophilic bacteria। mesophilic bacteria, the bacteria which shows their growth between 30 degree Celsius to 45 degree Celsius are referred as mesophilic bacteria। thermophilic bacteria from 50 degree Celsius to near about 80 degree Celsius or above are referred as thermophilic बैक्टीरिया। सो ये अलग अलग रेंजेस है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ रेंजेस। मिजोफाइल, इफ यू सी दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया डिपेंडिंग अपॉन देयर रेंज ऑफ टेम्परेचर, सो इनिशियल कैटेगरी जो आएगा हमारा ये आएगा थर्मोफाइल। नाउ दीज बैक्टीरिया कैन ग्रो बिटवीन अ रेंज ऑफ 0 degree Celsius to a value of 20 degree
सेल्सियस। लेकिन यहाँ पर भी दो अलग अलग कैटेगरी होते हैं, अप टू 15। Okay, so this initial type of bacterial species which show their optimum growth in between 0 to 10 degree Celsius are called as obligate psychrophiles। यहाँ पर दो अलग अलग कैटेगरी आते हैं, ठीक है। ऑब्लिगेट, ये एक वर्ड आएगा हमें अभी। ऑब्लिगेट इट मीन्स स्ट्रिक्ट, और इन्हें कहा जाता है स्ट्रिंजेंट, विच कैन नॉट एकोमोडेट अकॉर्डिंग टू द चेंज इन टेम्परेचर। उन्हें इतना ही स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। अगर टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आता है तो इस कैटेगरी के बैक्टीरिया उस फ्लक्चुएशन के साथ अकोमोडेट नहीं कर सकते, उन्हें कहेंगे हम ऑब्लिगेट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। सेकंड आते हैं फैकल्टेटिव। The type of bacteria which can accommodate with a slight changes in condition, इन्हें कहा जाता है नॉन stringent और facultative. They can adjust with a certain degree of change in the optimum level of that particular value. अब यहाँ पर जो पहले कैटेगरी आती है, फर्स्ट कैटेगरी दैट वी हैव 0 to 10 डिग्री सेल्सियस, ये हो गए हमारे ऑब्लिगेट साइक्रोफाइल्स। ओके, सेकेंड कैटेगरी इन बिटवीन 10 to 20 डिग्री सेल्सियस, इन्हें हम कहते हैं फैकल्टेटिव साइक्रोफाइल्स। मीन्स these type of bacteria can accommodate a certain degree of changes। अगर इनका टेम्परेचर कुछ डिग्री से प्लस या माइनस भी होता है तो ये बैक्टीरिया उस एडिशनल चेंजेस को आराम से अकोमोडेट कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टीज इन देयर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो इस टाइप के बैक्टीरिया को क्या कहेंगे हम? फैकल्टेटिव साइक्रोफाइट, having a best grown temperature, that is optimum temperature value in between this range is 15 degree Celsius. The optimum temperature value for साइक्रोफाइल क्या है? 15 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद आता है अ वैल्यू ऑफ मीजोफाइल, ठीक है, क्या आएगा? मीजोफाइल। अब बैक्टीरिया रेंजेस फ्रॉम 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, ये भी एक रेंज होता है, एंड 30 to 50 डिग्री सेल्सियस। नो, अब इन बिटवीन जो टाइम है, ओके, ये इन बिटवीन जो रेंज है, इस इन बिटवीन रेंज को, दिस एंटायर रेंज इज रेफर्ड एज मीजोफिलिक बैक्टीरियल रेंज। क्या कहा जाएगा इसे? मीजोफिलिक बैक्टीरियल रेंज बिटवीन दिस 20 to 50 डिग्री सेल्सियस completely, having a optimum value at near about 33 to 38 डिग्री सेल्सियस। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें, बेस 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये तो कॉमनली एम्प्लॉयड टेम्परेचर होता है। जो भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया है यहाँ पर मीजोफाइल्स की कंडीशन में, द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया विच आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉज डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियल डिसीजेज, ये सारी की सारी पॉपुलेशन इस मीजोफिलिक रेंज में आएगी। एंड अगेन थर्मोफाइल, नाउ दिस मीजोफिलिक रेंज गेट ओवरलैप्ड विथ द थर्मोफिलिक रेंज, दैट इज फ्रॉम a specific 45 डिग्री सेल्सियस, तो इनिशियल आएगा हमारा 60 डिग्री सेल्सियस। दिस रेंज इज कॉल्ड एज फैकल्टेटिव थर्मोफाइल। ओके, यहाँ पर भी दो रेंज आएंगे। पहला रेंज 45 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस, इस रेंज को हम कहेंगे फैकल्टेटिव थर्मोफाइल्स। एंड
सेकेंड 60 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस और अबव द 80 डिग्री सेल्सियस, इस रेंज को हम कहेंगे ऑब्लिगेट थर्मोफाइल्स, द सेकेंड रेंज। ठीक है, इसके आगे जो रेंज आएगा 60 डिग्री सेल्सियस के आगे, दिस रेंज इज कॉल्ड एज ऑब्लिगेट thermophile. So depending upon the requirement of temperature, the bacterial species are now categorized into different levels such as obligate psychrophiles, then we have facultative psychrophytes, ये दूसरी कैटेगरी आएगी, then the different type of mesophilic bacteria called as the mesophile, then facultative thermophile and obligate thermophile. Like this, the entire population of bacteria are distributed into these three basic categories. यहाँ पर हमें सबसे important आता है mesophilic category of bacteria, because ये तो extremophiles है in general, ये जो है psychrophiles and thermophile, commonly इनके लिए एक word यूज किया जाता है, these are extremophiles, सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, जो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करते हैं इन्हें कहा जाता है एक्सट्रीमोफाइल। एक लोअर टेम्परेचर पे सर्वाइव करेंगे, दूसरे हायर टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं। ओके, तो ये हो गया पहला फिजिकल पैरामीटर, एंड डिपेंडिंग अपॉन दिस फिजिकल पैरामीटर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरिया। नाउ आफ्टर द टेम्परेचर, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ फिजिकल पैरामीटर, ये आता है वैल्यू ऑफ पीएच। ठीक है, पीएच ऑफ सराउंडिंग मीडियम इन विच वी आर कल्टिवेटिंग these bacterial species, and again on the basis of this pH bacteria are categorized into three basic types. पहले आएगा बेसोफिल्स और इन्हें कहा जाता है अल्कैनोफाइल्स, देन न्यूट्रोफाइल्स, एंड लास्ट में आएगा एसिडोफाइल्स। नाउ these are three different categories: neutrophils, acidophils and alkanophils. Alkanophiles requiring a pH range above the 7.5 to 14 on pH scale. Neutrophile within a very short range 6.5 to 7.5, ये जो एक शॉर्ट रेंज है पीएच का, इसे न्यूट्रोफाइल कहेंगे, एंड एसिडोफाइल फ्रॉम 1 to 6.5। अब अलग अलग टाइप के बैक्टीरियल स्पेसीज डिपेंडिंग अपॉन देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, जहाँ वो नेचुरल कंडीशंस में प्रेजेंट हैं, उस कंडीशन में ये डिफरेंट टाइप्स के पीएच रेंजेस शो करते हैं। या सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है हमारा द कैटेगरी न्यूट्रोफाइल। ओके, मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया विच ओवरलैप विथ कंडीशन मेसोफाइल, किस कंडीशन के साथ ओवरलैप करेंगे? ये मेसोफाइल्स के साथ ओवरलैप करते हैं। दोनों का एक ही सेम नेचर होगा। मेसोफाइल्स आर ऑलवेज न्यूट्रोफिलिक बैक्टीरिया हैविंग अ शॉर्ट पीएच रेंज फॉर देयर ऑप्टिमम ग्रोथ बिटवीन 6.5 to 7.5। ठीक है, फिर से इन तीन अलग अलग कैटेगरी में हमने बैक्टीरिया को कैटेगराइज किया है: अल्कैनोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स एंड एसिडोफाइल्स। जनरली ये सराउंडिंग एनवायरनमेंट के कंडीशंस पर भी डिपेंड होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी इज द रिक्वायरमेंट ऑफ गैसेस, दैट इज द थर्ड कैटेगरी, गैसियस रिक्वायरमेंट। And on the basis of this gaseous requirement, we know that the microorganisms are basically categorized into two types, जहाँ पर पहला टाइप आएगा एरोब्स और एरोबिक बैक्टीरिया,
Now aerobic bacteria, the bacteria which utilizes molecular oxygen for the production of energy. ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का काम कहाँ आएगा, कहाँ यूज किया जाता है ये, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वेयर दिस ऑक्सीजन एक्ट्स एज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दैट इज ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ energy. So entire bacterial population which require this molecular oxygen during the last reaction of that electron transport system during the production of metabolic energy, that is ATP, are referred as aerobic bacteria. The second category, these are now anaerobic bacteria. Okay, क्या है ये, anaerobic bacteria. The bacteria which do not require this molecular oxygen for the energy production, and in some cases this molecular oxygen proves to be lethal for the growth of this bacterial species. ठीक है, पहले तो इन बैक्टीरिया को इस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होगी एनर्जी प्रोडक्शन के फॉर्म के लिए. दूसरी, दिस ऑक्सीजन कैन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. क्या करेंगे ये, कैन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ दिस बैक्टीरियल स्पेसीज. एंड डिपेंडिंग अपॉन दिस क्राइटेरिया, ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज एज ऑब्लिगेट एरोब्स. ये जो एनारोबिक है इन्हें फिर से 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा. एनारोबिक बैक्टीरिया में सबसे पहले ऑब्लिगेट एनारोब्स, सेकंड कैटेगरी फैकल्टेटिव एनारोब्स, एंड लास्ट कैटेगरी माइक्रो aerophiles. Okay, these are 3 different categories of anaerobic bacteria depending upon their tendency towards oxygen. So obligate anaerobes, they will show growth only in oxygen free medium. इनकी ग्रोथ कहाँ दिखाई देती है हमें, सिर्फ ऑक्सीजन फ्री मीडियम में. Even a small quantity of oxygen present in surrounding can inhibit the growth of this category of bacteria, and hence these are called as obligate or also called as stringent type of bacteria. यह वर्ड इससे पहले हमने डिस्कस किया है, stringent या फिर इसे कहेंगे strictly anaerobic bacteria. ठीक है, सेकंड कैटेगरी आएगी फैकल्टेटिवली एनारोबिक बैक्टीरिया. दिस बैक्टीरिया प्राइमरली डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर एनर्जी प्रोडक्शन, बट इफ इट इज अवेलेबल, अगर ये ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, देन इट इज यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. Okay, primarily these bacteria are independent of molecular oxygen for the production of energy, but it is available. Then in such a circumstances, these bacteria can also utilize this molecular oxygen. Means they can tolerate the levels of molecular oxygen, a certain level of molecular oxygen ये tolerate कर सकते हैं. ठीक है, और लास्ट में आएंगे हमारे माइक्रो एरोफिल्स, द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच कैन टॉलरेट अ स्मॉल लेवल ऑफ ऑक्सीजन. अगर उनके सराउंडिंग में या कल्चर मीडिया में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कैसा होना चाहिए, स्मॉल लेवल में प्रेजेंट होना चाहिए. ओके, दे कैन टॉलरेट द स्मॉल लेवल ऑफ ऑक्सीजन. ये इनकी कैरेक्टर होता है.
ऑक्सीजन टॉलरेंस, इन दोनों में प्रेजेंट होगा। माइक्रोएरोफिल्स में भी प्रेजेंट है और फैकल्टेटिव एनारोब में भी प्रेजेंट है। डिफरेंस क्या है? माइक्रोएरोफिल्स कैन टॉलरेट ओनली अ स्मॉल लेवल व्हाइल फैकल्टेटिवली एनारोब कैन टॉलरेट अ कंसिडरिंग लेवल ऑफ अमाउंट that is oxygen and even can use that molecular oxygen for the production of energy। इसीलिए इन्हें हम कहेंगे नॉन स्ट्रिंजेंट। ठीक है, ये जो वर्ड है नॉन स्ट्रिंजेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ओके, फैकल्टेटिव कहा जाता है सबसे पहले ऑब्लिगेट, दैट आर द स्ट्रिंजेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियल species। So depending on the second and third requirement of pH, यहाँ पर तीन अलग अलग कैटेगरी है। गैसियस रिक्वायरमेंट के बेस पर एरोबिक एंड एनारोबिक, वेयर दीज एनारोब्स अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री सब कैटेगरीज एज ऑब्लिगेट एनारोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स एंड माइक्रो एरोफिल्स। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट जो फैक्टर प्रेजेंट होगा, इट इज फैक्टर ऑफ ऑस्मोलैरिटी। Okay, now this osmolarity, it is created inside or outside the cell due to the presence of various type of solute, and these solutes are present in the cytoplasm of bacterial cell। फिर चाहे ये ऑर्गेनिक फॉर्म के सोल्यूट हो, अलग अलग टाइप के मैक्रोबायोमोलिक्यूल या फिर माइक्रोबायोमोलिक्यूल, और दिस मे बी डिफरेंट टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक आयन एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द कल्चर मीडियम। ओके, कहाँ प्रेजेंट होंगे ये? कल्चर मीडियम में। एंड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज सोल्यूट गेट डिस्टर्ब्ड बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड कल्चर मीडियम, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ phenomenon related with the osmolarity such as endoosmosis और second one exoosmosis। ठीक है, ये दो अलग अलग फिनोमेनॉन है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एंड दिस कैन रिजल्ट इनटू, अगर यहाँ पे एंडोऑस्मोसिस होगा तो भी बैक्टीरियल सेल बर्स्ट होगा, यहाँ एक्सोऑस्मोसिस होगा तो बैक्टीरियल सेल गेट प्लाज्मोलाइज्ड, अ phenomenon of plasmolysis, and both of these phenomena are now dangerous for the growth of bacterial cell, and hence to maintain a normal level of osmolarity there is a addition of 0.5 to 1% of NaCl, okay, depending upon the composition of culture media with respect to the other type of ingredient। हमें किस टाइप का कल्चर मीडिया तैयार करना है और उस कल्चर मीडिया में बाकी के इंग्रेडिएंट्स कौन से टाइप के हैं, उस अकॉर्डिंगली यहाँ पर 0.5 to 1% NaCl ऐड किया जाता है। किस लिए? टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ कल्चर मीडियम विच सपोर्ट द कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल सेल। जैसे ही इस बैक्टीरियल सेल्स में रिप्रोडक्शन होगा, इन सभी रिप्रोडक्शन को यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा और ये सपोर्ट कंटिन्यूअस रहना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना ज़रूरी होता है और इसे अचीव किया जाता है बाय द एडिशन ऑफ दिस 0.5% और 1% NaCl इनसाइड द कल्चर मीडियम। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अलग अलग बेसिक पैरामीटर्स which are necessary to study during the preparation of culture medium। इसके बाद जो पार्ट है हमारा, it will be related with the growth of bacteria, that is the growth curve of bacteria हम स्टडी करेंगे। बैक्टीरिया किस टाइप से रिप्रोड्यूस करते हैं इसे स्टडी करते हैं। ठीक है।